Okay, so good morning, all. My name is Sanjay Pekar. I'm founder of MoneySpring.in, where we help customers to do the complete financial planning, and we help them to make the right decisions for right investments, be it in the form of mutual fund, or you should want to plan a proper life insurance, or what kind of health insurance one should have, or be it a vehicle insurance. So we have a complete suite of offerings. Along with that, for HNI customers, we have portfolio management services, equity advisory services. So over the last few weeks, there have been always, some questions. People keep asking the questions. Hey, is it a recession going to go on, or is there any, problem with the economy where the markets will correct from here further on? तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं. So we thought, okay, in this context, why don't we have the expert from the industry, and he can speak with you, and it can be it will be a rather interactive session. So हम लोग चाहते हैं कि it should be interactive session, and आप क्वेश्चन जो भी है आपके, आप you can post on the chat box. Also, if you want live, you can unmute yourself later in the session and ask the question. And please feel free to ask question, because हम लोग ये चाहते हैं कि ये इंटरेक्टिव सेशन है, ये हम सब लोगों का सेशन है. इसमें कोई ऐसा वन वे या कोई करेक्ट ऐसा कुछ नहीं है. सो डोंट फील एनीथिंग शाय अबाउट कि ये क्वेश्चन मैं कैसे पूछूं बोल के. तो इसलिए आज हम लेके आए हैं मिस्टर मयूर शाह जी को. Piyush Shah has been a veteran into this finance industry, and in fact, he is the fund manager for Anand Rathi PMS services. In fact, ये PMS services इनकी one of the top 3 in India currently चल रही है. तो उनके भी कुछ different perspectives रहते हैं, different views रहते हैं कि क्या हो रहा है market में. So in that regard, we will hear from him for first few minutes, and then we will open up for question and answer. Over to Mr. Mayur Shah, please. Thank you, Sanjay ji. And good morning to all of you who have taken out your time for this insightful session on the PMS. I've got some requests. मैंने देखा है chat box में कि लोगों ने कहा है कि हिंदी में बात करने के लिए. So we'll try as far as possible हिंदी English mix करके हम लोग बात करेंगे, so that ज़्यादा से ज़्यादा audience को हम लोग connect कर पाएं. Before coming on to and jumping on to the PMS product offerings हमारे आनंद राठी से क्या है, I am sure जो संजय जी ने बताया right now कि काफी लोगों के मन में doubts है, queries है with respect to the market condition. मतलब लास्ट 9 महीने से अगर बात करें तो काफी चैलेंजिंग फेज रहा है मार्केट के लिए. प्रायर टू दैट 2 साल ऐसी रैली आई थी कि सब लोगों को ऐसा लगा था कि भाई मार्केट्स आर गुड, मार्केट्स ने हमें अच्छा पैसा बना के दिया है, पीपल वर मेकिंग कंटिन्यूअस बेसिस पे जहां जहां पे भी पैसा लगा था पैसा बन रहा था. बट लास्ट 9 महीने से ये चैलेंजेस सडनली अपने सामने आ चुके हैं. एंड समवन जो मार्केट में लास्ट अगर 15-20 साल से अगर मार्केट में अगर कोई है एंड वो लोग मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, देन दे वुड अंडरस्टैंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि यस ऐसे फेजेस बीच बीच में मार्केट में हमेशा आते रहते हैं. एंड समवन हु इज रिलेटिवली न्यू, जो उन्होंने कभी ऐसा मार्केट को इतने ध्यान से देखा नहीं था, जस्ट आफ्टर कोविड उन्होंने एंटर किया था मार्केट में, तो उनको शायद ये थोड़ा चैलेंजिंग फेज दिख रहा रहेगा. So let me first give you clarity what is the challenge that we are facing right now, and whether these kind of challenges can be mitigated, not be mitigated, and how do we overcome these challenges, and how normally market behaves जब भी ऐसे challenges आते हैं. एक चीज स्टार्ट करता हूं मैं. ये जो पूरा जो रैली स्टार्ट हुआ था पोस्ट कोविड, मतलब मार्च 2020 के बाद जो बॉटम बना था, कंटिन्यूअस मार्च 2021, 20 और 21 में हमें एक बहुत अच्छा रैली मिला था. द रीजन बीइंग ऑफ द रैली इज वाज द लिक्विडिटी. जब भी बड़े क्राइसिस आते हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो क्राइसिस पेंडेमिक रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो क्राइसिस फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ल्ड वाइड क्यों ना हो, चाहे वो वॉर रिलेटेड क्राइसिस क्यों ना हो, इन द पास्ट हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी बड़े क्राइसिस आते हैं मार्केट में, जहाँ पे सेंटिमेंट्स एकदम से कोलैप्स हो जाते हैं, डिमांड एनवायरनमेंट एकदम से गिर जाता है, उस टाइम पे तो जितने भी सेंट्रल बैंकर्स है वर्ल्ड वाइड,
उन लोग ये ट्राई करते हैं कि भाई ये मार्केट को रिवाइव कैसे किया जाए, एंड द ओनली वे टू गिव बूस्ट टू द इकोनॉमी इज टू पंप इन मनी इनटू द सिस्टम एंड कीप द इंटरेस्ट रेट एज लो एज पॉसिबल, सो दैट अगर किसी को पैसे की जरूरत है टू रीस्टार्ट, किक स्टार्ट देयर बिजनेस या किक स्टार्ट देयर पर्सनल एक्सपेंसेस ऑल्सो, तो वो लोअर इंटरेस्ट रेट के कारण एक अट्रैक्टिवनेस बन जाती है और लिक्विडिटी सिस्टम में अच्छी रहती है, तो किसी को कोई पैनिक या पिंच फील नहीं होता है। सो दिस इज अ कॉमन फिनोमिना। जब ये पूरा लिक्विडिटी सिस्टम में आया था, हमने 2 साल बहुत अच्छा रैली देखा है मार्केट के अंदर, ऑलमोस्ट डबल हो चुका था, 7,500 से हमने 18,000 का निफ्टी का लेवल देख लिया था ऑन द टॉप साइड। Now, with the excess liquidity into the system and with the money circulation जब exchange होना start हो जाता है एक हाथ से दूसरे हाथ में, suddenly the demand environment starts improving in a quite robust manner. तो वही हुआ था, लॉकडाउन से लोग बाहर आ रहे थे, डिमांड एनवायरनमेंट पिकअप होना स्टार्ट हो गया था, काफी पेंटअप डिमांड भी हो चुका था, वो डिमांड भी मार्केट के अंदर आना चालू हो गया था। लेकिन ग्लोबली वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ बिट्स एंड पीसेस में लॉकडाउन चल रहे थे, सप्लाई चेन डिसरप्शन में चल रहा था। मतलब ऐसे काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे 1.5 ईयर बैक, जहां पे अपने को दिख गया था चाइना के पोर्ट्स में कंजेशन चल रहा है, यूएस के पोर्ट्स में कंजेशन चल रहा है, सर्टेन की रॉ मटेरियल की इनपुट्स की कमी दिख रही थी, जैसे ऑटो में भी एक सेमीकंडक्टर की रेगुलरली हमें कमी दिख रही थी। तो ऐसे काफी सारे इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल जो इनपुट्स नॉर्मली इंडस्ट्री को लगते थे, वहां पे सप्लाई डिसरप्शन था। तो एक बाजू डिमांड बहुत अच्छा पिकअप हो रहा था, लेकिन दूसरे बाजू कहीं ना कहीं सप्लाई में जो डिसरप्शन आ रहा था, तो देयर वाज अ मिसमैच बिटवीन अ डिमांड एंड सप्लाई, एंड सडनली इन्फ्लेशन स्टार्टेड टू मूव इन। धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया था अक्रॉस द ग्लोब, एंड टू टारगेट दिस इन्फ्लेशन बिकॉज डिमांड इतना अच्छा आ गया था, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंकर्स का रोल था कि सेंटिमेंट्स को रिवाइव किया जाए, डिमांड एनवायरनमेंट को रिवाइव किया जाए, दे हैव सक्सेसफुली डिड दैट कि भाई इतना लिक्विडिटी छोड़ दिया सिस्टम में, इंटरेस्ट रेट इतना कम कर दिया, एंड दैट हेल्प द डिमांड टू इम्प्रूव। अब बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव डिमांड, उसके सामने थोड़े पार्शियली सप्लाई मिसमैच भी हो रही थी, तो जो इन्फ्लेशन अभी बढ़ना स्टार्ट हो गया था, तो जितने भी वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंकर्स है, नाउ दे वर गोइंग ऑन अ कॉशियस नोट कि अब धीरे धीरे मॉनेटरी टाइटनिंग की जरूरत है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत है, और जितना भी पैसा सिस्टम में छोड़ा था उन्होंने, वो धीरे धीरे वो पैसे को रोल बैक किया जाए। एंड दैट इज द रीजन व्हाट वी आर सीइंग कि जो मनी फ्लो आ रहा था कॉन्स्टेंटली ग्लोबल मार्केट से, यूएस मार्केट या यूरोपियन मार्केट से, वो धीरे धीरे उन्होंने स्टॉप कर दिया द सप्लाई ऑफ मनी, एंड उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट किया कि जो भी एक्सेस लिक्विडिटी है मार्केट में, कहीं ना कहीं वो बैंकिंग चैनल में वापस आ जाए। सो दिस इज अ कॉमन फिनोमिना आफ्टर अ पुश इनटू द लिक्विडिटी बाय द सेंट्रल बैंकर्स। वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एनवायरनमेंट एंड इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट इंप्रूविंग। तो ये पूरा चैप्टर जो है लास्ट 1 ईयर पहले से ही पता था लोगों को कि भाई ये धीरे धीरे जो सेंट्रल बैंकर्स है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट करेगी। हाँ, ओनली थिंग जिसको नहीं पता था या इवन हमें भी नहीं पता था कि ये इंटरेस्ट रेट किस इंटेंसिटी से बढ़ेगा। जो इंटेंसिटी से इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए, दैट इज अगेन अ डिपेंडेंट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। मतलब अगर इन्फ्लेशन अगर स्लो एंड स्टेडी बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट को भी स्लो एंड स्टेडी बढ़ा के वो लोग उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। तो ये लास्ट ईयर में जब सितंबर क्वार्टर खत्म हुआ था, उस टाइम से लोगों को पता चल गया था कि भाई मार्केट में अभी धीरे धीरे मॉनेटरी टाइटनिंग होने वाली है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। सेंट्रल बैंकर्स ने ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिए थे उस टाइम पे भी। इंडिया में थोड़ा कंडीशन नॉर्मलाइज था उस टाइम पे, बिकॉज हमें इन्फ्लेशन का इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, तो इंडिया में इंटरेस्ट रेट इतने बड़े नहीं थे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वी वर स्टिल हैविंग अ status quo because we were pretty much comfortable with the inflation rate. तो सितंबर के बाद जो कॉर्पोरेट के नंबर्स आए, दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स, मार्च क्वार्टर के नंबर्स, हमें अंदाजा था कि भाई दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर में चैलेंजेस दिखेंगे, बिकॉज हमने एक फर्स्ट राउंड ऑफ ऑयल प्राइसेस मूविंग अप, मेटल प्राइसेस भी जो फर्स्ट राउंड में मूव हुआ था अपसाइड पे, तो उसके कारण ये इन्फ्लेशनरी चैलेंजेस आ गए थे मार्केट के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट अ ईयर बैक। तो कहीं ना कहीं जो मेटल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस जो ऊपर चल रहे थे, उसके कारण प्रॉफिट मार्जिन में कहीं ना कहीं डेंट बन रहा था ऑन द कॉर्पोरेट साइड।
तो हमें ये पता था कि एक बार जो डिमांड तो बहुत अच्छा आ रहा है, बट कहीं ना कहीं जो ऑपरेटिंग मार्जिन थे कंपनीज के, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्लो डाउन होएगा, वहां पे थोड़ा डिक्लाइन हो सकता है. एंड वी वर रेडी टू फॉर एंड प्रिपेयर्ड कि यस वी आर गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन एंड करेक्शन फेज. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मार्च तक ये करेक्शन चलेगा. जो दो में नॉर्मली क्या होता है, जो जब भी ये मेटल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस जब बढ़ते हैं मार्केट के अंदर, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मिनिमम 2 क्वार्टर लगता है फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड साइड एंड इवन द इकोनॉमी को उसको एब्जॉर्ब करने के लिए. समथिंग जो हमने फैक्टर नहीं किया था, दैट वाज द रशिया एंड यूक्रेन टेंशन. जो रशिया एंड यूक्रेन टेंशन जो अभी जस्ट फरवरी में आया, ऑलमोस्ट 5-6 महीने पहले जब फरवरी में रशिया एंड यूक्रेन का जो टेंशन आया, उसके कारण हमने सेकेंड राउंड ऑफ इन्फ्लेशनरी चैलेंजेस देखे. प्योरली आई कैन से सप्लाई डिसरप्शन ज्यादा था इस टाइम पे. स्पेसिफिकली ऑयल प्राइसेस की बात करें कि ऑयल ने एक सेकेंड राउंड ऑफ इन्फ्लेशन में $100 के ऊपर क्रॉस कर दिया, जो पहले नहीं कर पाया था. सेम वे काफी सारे जो मेटल्स थे, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, निकल, काफी सारे कमोडिटीज में हमने बहुत बड़ी स्पाइक देखी. Along with this commodity and fuel, we also saw कि भाई फूड इन्फ्लेशन ने भी पार्टी को ज्वाइन कर लिया. पहले फूड इन्फ्लेशन में कोई मेजर चैलेंज नहीं था, बट दिस टाइम हमने देखा कि भाई ये जितने भी व्हीट है, शुगर है, कॉटन है, एग्री कमोडिटीज ने, पाम ऑयल, एडिबल ऑयल वाले जो सेगमेंट्स है, वहां पे भी एक बहुत बड़ा जंप आ गया. सो दिस इज द फूड इन्फ्लेशन जो होता है नॉर्मली वो मार्केट को सबसे ज्यादा हर्ट करता है, बिकॉज फूड इन्फ्लेशन जो हर एक कंपनी आई कैन से कंट्री के बास्केट के अंदर इन्फ्लेशन को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है. तो सडनली हमने एक बहुत बड़ा स्पाइक देखा है इन्फ्लेशन के अंदर, एंड दिस वाज नॉट समथिंग एक्सपेक्टेड बाय मेनी ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी. तो सडनली जो स्पाइक आया, तो वहां पे हमने देखा ये यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट के लिए बड़ा चैलेंज आ गया था, बिकॉज उन्होंने कभी इन द पास्ट डेकेड, मल्टीपल डेकेड्स में कभी ऐसा 4 से 5 डेकेड्स में कभी ऐसा देखा नहीं कि इन्फ्लेशन 7 to 8% के ऊपर जा रहा है. इंडियन मार्केट में हम लोग फिर भी काफी हद तक यूज टू थे कि भाई 6-7% इन्फ्लेशन तो इंडिया में ऑलवेज रहता है, बिकॉज अंडर करंट ग्रोथ इंडिया में ऑलवेज रहता है. बट यस, आरबीआई ने जो बेंचमार्क सेट किया था कि भाई 6% के अंदर रखना है इन्फ्लेशन, कहीं ना कहीं वो ब्रीच होना स्टार्ट हो गया था इवन इंडियन मार्केट के अंदर भी. तो हमने क्या देखा कि भाई लास्ट 4 to 5 मंथ्स में द इंटरेस्ट रेट हाइक जो हुए फ्रॉम यूएस मार्केट, फ्रॉम यूरोपियन मार्केट एंड इवन इन इंडियन मार्केट was much more faster than expected, because उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था. डेफिनेटली ये ऐसा इन्फ्लेशन था कि जहां पे 50% डिमांड से चैलेंज, डिमांड बहुत अच्छा था, उसके कारण इन्फ्लेशन आ रहा था. बट बैलेंस 50% की अगर बात करें तो बिकॉज सप्लाई डिसरप्शन था, सप्लाई चेन में चैलेंजेस थे, और रशिया यूक्रेन के कारण काफी सारे कमोडिटीज जहां पे ग्लोबल मार्केट रशिया यूक्रेन पे डिपेंडेंट है, तो वो और भी ज्यादा चैलेंजिंग फेज में चले गए. लास्ट 1.5 मंथ में अगर हम लोग बात करें, जो डेवलपमेंट हुई है, दैट इज वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट आज की तारीख में. लास्ट 1.5-2 मंथ्स में अगर हम देखते हैं, कहीं ना कहीं ये जो मेटल प्राइसेस है सारे कॉमोडिटी, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, स्टील, लेड, निकल वगैरह, ये सब करेक्ट हो चुके हैं, और वो अपने 6 महीने से 1 साल के लो पे आ चुके हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो इट्स अ साइजेबल करेक्शन जो हमने मेटल कमोडिटीज में देखा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सेम वे अगर मैं एग्री कमोडिटी की भी बात कर लूं, तो पाम ऑयल भी 40% करेक्ट हो चुका है पीक लेवल से, एडिबल ऑयल करेक्ट हो गया है, कॉटन करेक्ट हो गया है, व्हीट, शुगर, एवरीथिंग हैज करेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस पीक लेवल. मतलब कहीं ना कहीं ये जो इंटरेस्ट रेट साइकिल्स जो बढ़ रहे हैं मार्केट के कारण, नो डाउट लोग बात कर रहे हैं कि शायद रिसेशन आ जाएगा ग्लोबल मार्केट में. स्पेसिफिकली द यूएस मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे, बिकॉज एक बड़ा योगदान रहता है यूएस मार्केट का. तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो एंटिसिपेशन है कि शायद रिसेशनरी एनवायरनमेंट बन सकता है, तो पहले से ही लोग रिएक्ट कर रहे हैं. ये मेटल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो चुके हैं. वन गुड पार्ट ये भी था कि भाई जो रशिया यूक्रेन के पोर्ट्स पे पहले होल्ड कर दिया था, वहां से सप्लाई नहीं आ रही थी, बट एटलीस्ट रशिया एंड यूक्रेन हैज एंश्योर्ड कि वहां से पोर्ट से सप्लाई आना स्टार्ट हो जाए. तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन जो था वो नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो गया है. इवन जो चाइना में कंटिन्यूअस बेसिस पे ऑन ऑफ कोविड के कारण लॉकडाउन हो रहे थे, चाइना भी अब ओपन अप हो चुका है,
एंड काफी सारे जो रॉ मटेरियल्स जो चाइनीज मार्केट से आते थे वो भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया है। तो एक बाजू आपका जो डिमांड एनवायरनमेंट जो चल रहा था दैट इज डूइंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग, डिमांड में कोई चैलेंज नहीं है। हो सकता है हल्का सा डिमांड पुल बैक हो जाए बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट इन द ग्लोबल इकोनॉमी, बट दूसरी साइड सप्लाई चेन नॉर्मलाइज होती जा रही है। तो बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन नॉर्मलाइजिंग कहीं ना कहीं ये जितने भी इन्फ्लेशनरी चैलेंजेस हमें जो दिख रहे थे मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ हायर ऑयल प्राइसेस, हायर मेटल प्राइसेस, हायर अपने एग्री कमोडिटीज, ये कहीं ना कहीं अभी वापस आ रहे हैं, नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं। और इसका जो बेनिफिट अभी जो करेक्शन आया है कमोडिटी मेटल एंड फ्यूल में, उसका बेनिफिट भी नॉर्मली 3 से 6 महीने बाद आता है। तो हो सकता है अभी अपना जो जून का क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे कॉर्पोरेट्स के, इवन इन इंडियन मार्केट में जून क्वार्टर्स में अपने को हल्का सा मार्जिन प्रेशर दिखेगा। टॉप लाइन बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, डिमांड बहुत अच्छा चल रहा है, रेवेन्यू में कोई चैलेंज नहीं है। आज कोई भी ऐसा कंप्लेन नहीं कर रहा है कि मेरा बिजनेस नहीं हो पा रहा है, मेरा धंधा नहीं हो रहा है। एवरीवन इज एबल टू डू अ डिसेंट अमाउंट ऑफ बिजनेस। ओनली थिंग थोड़ा बहुत हो सकता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी में हिट आएगा, आपका प्रॉफिट रहेगा लेकिन थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लेवल से कम आएगा प्रॉफिट। और मे बी सितंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स इट विल स्टार्ट चेंजिंग। सितंबर क्वार्टर से दिखेगा कि भाई हाँ प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई, बिकॉज मार्जिन प्रेशर जो चल रहे थे वो कहीं ना कहीं अभी रिड्यूस होते दिख रहे हैं। काफी सारे कॉर्पोरेट्स ने ऑलरेडी प्राइस राइज भी ले लिया था टू पास ऑन द इंक्रीज प्राइस टू द एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर के ऊपर प्राइस राइज करके पूरा प्रेशर शिफ्ट कर रहे थे। इन स्पाइट ऑफ शिफ्टिंग द प्रेशर हमें कोई मेजर डिमांड एनवायरनमेंट में इंडियन मार्केट में तो फिलहाल ड्रॉप नहीं दिख रही है। इवन येस्टरडे की अगर बात करूं तो यूएस मार्केट में भी जॉब नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। तो इवन यूएस मार्केट में जो लोग बात कर रहे हैं कि रिसेशन आ जाएगा, शायद मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी वी शुड टेक अ कॉल के रिसेशन आ जाएगा, बिकॉज मार्केट्स अभी काफी मैच्योर हो चुकी है। मतलब अगर आप पास्ट के जो मतलब डेकेड ओल्ड थ्योरी के ऊपर बेसिस पे चल रहे हो कि भाई 50 साल पहले 100 साल पहले भी ऐसे बहुत बड़े इन्फ्लेशन चल रहे थे, उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे, उसके कारण रिसेशन आ गया था। आई एम नॉट श्योर कि वेदर द सेम काइंड ऑफ फिलोसॉफी कैन बी अटैच टू द करंट सिनेरियो, बिकॉज मैच्योर जितना जितना मार्केट डेवलप होता है, मैच्योर होता है, सिस्टम विल ट्राई टू एब्सॉर्ब ऑल दिस इकोनॉमिक शॉक्स व्हिच आर देयर। सेम वे इंडियन मार्केट में भी जितने भी मैक्रो इंडिकेटर्स आप देखो, यहाँ पे जो आईआईपी के नंबर्स आ रहे हैं बाहर, पीएमआई के जो डाटा है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कांस्टेंट बेसिस पे 50 के ऊपर चल रहा है। तो 50 के ऊपर का इंडिकेशन ये होता है कि वी आर ग्रोइंग। हो सकता है किसी किसी मंथ में हमारा रेट ऑफ ग्रोथ थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन हम लोग ग्रो हो रहे हैं, डी ग्रो नहीं हो रहे हैं। सेकंड थिंग, पीएमआई सर्विस इंडस्ट्रीज के जो डाटा पॉइंट आए हैं वो अपने 11 ईयर हाई पे चल रहे हैं आज की तारीख में। तो सर्विस सेक्टर वो काफी अच्छी तरह से रिकवर हो रहा है इंडियन मार्केट में। डेफिनेटली अनलॉकिंग ऑफ इकोनॉमिक से भी उसको बहुत बड़ा फायदा हो रहा है आज की तारीख में। बट अगर सामने हम देखेंगे ये अपने जो जीएसटी कलेक्शन हो रहे हैं कांस्टेंट बेसिस पे 1-1 लाख करोड़ के ऊपर आ रहे हैं। इवन लास्ट मंथ जून मंथ का जो जीएसटी कलेक्शन था इट वाज द सेकंड हाईएस्ट टिल डेट, 1.4 लाख करोड़ का कलेक्शन आया था। अपना जो ई वे बिल्स चल रहा है, कार्गो मूवमेंट जो हो रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि भाई डिमांड एनवायरनमेंट इज क्वाइट रोबस्ट। इवन जो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट है, एक्सपोर्ट में भी हम लोग ने वी हैव अचीव वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोर्ट टर्नओवर ओवर द लास्ट 1 ईयर्स टाइम फ्रेम। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि डिमांड में कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है आज की तारीख में। अगर हल्का सा डिमांड थोड़ा पुल बैक भी हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी वरी साइन नहीं है आज की तारीख में, बिकॉज वी आर गोइंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग। जो मार्जिन प्रेशर है वी बिलीव एक आध क्वार्टर और वेट करके वो निकल जाएगा, लेकिन मार्केट्स आर ऑलवेज अहेड ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग इन। तो मार्केट ने वो ऑलरेडी भाप लिया है कि भाई थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा बेटर होने वाला है। तो मार्केट ने अपना जो डाउनवर्ड जर्नी था, नीचे का जो करेक्शन हो रहा था, वो कहीं ना कहीं वो करेक्शन होल्ड पे आ गया है। तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये वापस जो 15,200 का जो लेवल आया था, हो सकता है रीटेस्ट करे एक बार, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा गिरने की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। हमने भी जब करेक्शन स्टार्ट हुआ था एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे कि वर्स्ट सिनेरियो में 14,800 14,600 का निफ्टी का लेवल आ सकता है। whether it will come or not, again it will be determined by the macro environment। तो हुआ ये है कि नियर अबाउट 15,000 से मार्केट घूम गया है एंड इट इज स्टेइंग सॉलिड ऑन द अपर साइड।
तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट नॉर्मली एक टाइम लेके एब्जॉर्ब करता है ये जितने भी मैक्रो चैलेंजेस है, एंड इंडिया बीइंग इन सच अ पोजीशन कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर्स जो है वो नॉर्मली अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन से ही चलते हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द ग्लोबल मार्केट। मे बी 20-25% ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे हमें ग्लोबल मार्केट से डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अपना जो डिमांड है, पूरा जो बिजनेस है वो ग्लोबल मार्केट से आ रहा है। और एक चीज आपने नोटिस की रहेगी, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ सेलिंग ऑफ एफआईआई, मतलब एफआईआई से इतना पैसा मार्केट से निकाला है, उसके बावजूद भी मार्केट होल्ड कर रहा है। दैट जस्ट शोज नाउ स्लोली एंड स्टेडली इंडियन मार्केट्स भी मैच्योर होते जा रहे हैं। Number of investors have started to increase in Indian market, and they have faith and confidence in Indian market going forward, because demand is looking quite strong and the industries are doing quite strong, and एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं आज की तारीख में इंडियन मार्केट में। और जो केपेक्स साइकिल था जो काफी हद टाइम से मिसिंग था, गवर्नमेंट के ओर से कंटिन्यूअस बेसिस पे केपेक्स हो रहा था, बट दिस टाइम इवन द प्राइवेट केपेक्स हैव स्टार्टेड टू जॉइन द पार्टी। तो कहीं ना कहीं जब भी ये प्राइवेट केपेक्स एंड गवर्नमेंट केपेक्स साथ में मिल जाते हैं, तो जो साइकिल रहती है वो मिनिमम 3 से 4 साल तक चलती रहती है ऑन द अपर साइड। so we are just in that particular period, in that particular area कि जहाँ पे अपना साइकिल बहुत रोबस्ट चलने वाला है ऑन द अपर साइड। जो इंडियन मार्केट के लिए जो चैलेंजिंग पार्ट है उसके बारे में बात कर देता हूँ। जो रिस्क फैक्टर अगर होना है, कुछ आ सकता है, तो वी आर सपोज टू केयरफुली वॉच द जियोपॉलिटिकल टेंशन। रशिया यूक्रेन का जो टेंशन है अभी तक तो बिटवीन टू कंट्री ही चल रहा है। अगर वो मल्टीपल कंट्रीज के अंदर ना चला जाए, मल्टीपल कंट्रीज पार्टिसिपेट ना करे उसमें, तो इसके ऊपर हमें क्लोज वॉच रखना पड़ता है। इंडियन मार्केट काफी हद तक ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। अपना इंपोर्ट बिल्स काफी बढ़ चुके थे रिसेंटली, बिकॉज कोल प्राइसेस बढ़ चुके थे। अपना इंपोर्ट ऑफ कोल, इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट ऑफ गोल्ड भी काफी बढ़ चुका था। एंड दैट इज द रीजन इवन गवर्नमेंट को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा था कि भाई गोल्ड पे उन्होंने ड्यूटी लगा दी है। इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी उन्होंने कहीं ना कहीं ड्यूटी बढ़ाई है, जस्ट टू एंश्योर कि भाई जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट ना होए, बिकॉज दिस इंपोर्ट जो बढ़ा है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा फास्ट बढ़ा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल चैलेंजेस ऑयल, पेट्रोलियम एंड गोल्ड के, कोल एंड गोल्ड के कारण। ये जो इंपोर्ट्स बढ़ने के कारण अपना ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, जिसके कारण रुपी में प्रेशर काफी आ रहा था। एंड दैट इज द रीजन हम 79.4 के आसपास रुपी पे चले गए हैं। बट ये जो प्रेशर जो दिख रहा था मार्केट के अंदर, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि एफआई का सेलिंग चल रहा था मार्केट के अंदर आज की तारीख में। बट कहीं ना कहीं अब हम ऐसे लेवल पे आ चुके हैं कि जहां पे हम लग रहा है कि ये जो मेटल प्राइसेस, क्रूड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस सब जो करेक्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अपना इंपोर्ट बिल भी धीरे धीरे कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। जो ट्रेड डेफिसिट का जो चैलेंज दिख रहा था वो कहीं ना कहीं वापस रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट मुझे नहीं लगता है ये $80 रुपी का जो रेट है वो $80 को क्रॉस करेगा। एंड समवेयर डाउन द लाइन अब हमें ये दिखेगा कि जो एफआई का जो सेलिंग का इंटेंसिटी था वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, एंड वी माइट सी द रिवर्सल। एफआई वुड स्टार्ट कमिंग बैक इन इंडियन मार्केट, बिकॉज अगर उनके खुद के मार्केट में, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट में अगर वहां पे चैलेंजेस है और अगर उनके पास पैसा है, अगर उनको कोई अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन में पैसा लगाना है, then India becomes the most preferred destination at this point of time, because अपना GDP growth rate जो है it is expected to be relatively good. तो what I feel, the corrections जो आया मार्केट के अंदर, हम लोग अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं। ब्रॉडर मार्केट की बात करूं, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्टॉक अपने पीक लेवल से 30-40% का करेक्शन हुआ है उसके अंदर। निफ्टी और सेंसेक्स की भी अगर बात करूं तो 15 से 20% तक का करेक्शन हमने देख लिया है निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स में भी, एंड वी हैव बाउंस्ड बैक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लो। फ्रॉम द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं तो मैं ये नहीं कहता हूं हम बहुत ज्यादा चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, बट यस हम हमारे हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन के पास आ चुके हैं। दैट इज स्टिल अ गुड केस टू मेक एन इन्वेस्टमेंट चॉइस, बिकॉज हमें नहीं लगता है कि हम बहुत ज्यादा चीप वैल्यूएशन पे अभी मार्केट मिलेगा आपको। इवन लुकिंग एट दैट एफआई का सेलिंग, जिस हिसाब से मार्केट ने मैच्योरिटी दिखाई है, इतने मैच्योर मार्केट में देयर इज वेरी लेस स्कोप
फॉर एनी काइंड ऑफ स्टॉक डिस्कवरी। वो पीरियड चला गया जो 10-15 साल पहले मिलता था कि बड़ा करेक्शन आता था, फिर स्टॉक डिस्कवरी होती थी, चीप वैल्यूएशन में स्टॉक मिलता था और मल्टी बैगर हमें ढूंढने को मिलता था। बट वो वाला सिनेरियो अभी मार्केट में रहा नहीं है। मार्केट्स हैव बीन मैच्योर्ड इनफ। हमें एक्टिवली ट्रैक करना है, हमें पोर्टफोलियोज को एक्टिवली मॉनिटर भी करना है, बिकॉज जो भी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं वैल्यूएशंस आर एट हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन। चीप नहीं है बट बहुत ज्यादा प्रीमियम पे नहीं है। प्रीमियम वाला जो सेगमेंट था वो धीरे धीरे ये करेक्शन में दे हैव केम बैक टू देयर हिस्टोरिकल एवरेज। तो ये पर्टिकुलर मार्केट का सेटअप में अगर आपको 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंज नहीं है, स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट पर्सपेक्टिव से। एक्सेप्ट फॉर दैट 2-3 चैलेंजेस जो मैंने बताया आपको, अगर वो चैलेंजेस और डिटीरियोरेट नहीं होते फर्दर, तो मुझे नहीं लगता है why one should not stay invested and one can in fact take that as an opportunity कि भाई यहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जा सकते हो। So that is my view on the market. Market view is like endless. People can keep on talking about the market, but this is a very broad summary that I have tried to give you in a nutshell कि भाई जहाँ कहाँ पे लग रहा है मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। Now coming back, I would be just sharing my screen in front of you. जो हमारे 3 डिफरेंट PMSs है, जो हम लोग मार्केट PMS में हम लोग जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तीनों डिफरेंट PMS के जो स्ट्रेटेजीज है दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। जितने जो भी प्रोडक्ट में अगर रिस्क है तो वहां पे रिवॉर्ड की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। एज एन इन्वेस्टर आपने भी मल्टीपल जगह पे पैसा लगाया है, आप FD में, बॉन्ड्स में, इक्विटी मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में, मल्टीपल जगह पे आप पैसा लगाते हो। तो यहाँ पे भी अगर आप जब PMS में इक्विटी में भी आते हो तो विद इन इक्विटी भी आप फर्दर डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि भाई कितना पोर्शन रिस्की वाले इन्वेस्टमेंट एसेट्स में लगा जा सकता है, कितना पोर्शन थोड़ा कंजर्वेटिव स्टाइल में भी इक्विटी में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। संजय जी स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, it is coming up. Yes, it has. राइट। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेश्चंस, क्वेरीज है तो आप प्लीज उसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वी विल हैप्पी टू एड्रेस ऑल दिस डाउट्स एंड क्वेरीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इन पहले मैं थोड़ा वेरी नटशेल में मैं 15 से 20 मिनट में हमारे तीनों स्ट्रेटेजीज के बारे में आपको बता देता हूँ, देन वी विल टेक द Q&A सेशन ओवर हियर। जो पहला स्ट्रेटेजी जो हमारा है वो मल्टीनेशनल कंपनीज पोर्टफोलियो का है। इसका MNC PMS का हमने नाम दिया है। ये स्ट्रेटेजी को 4 साल पूरे हो चुके हैं एंड ऑब्जेक्टिव वाज वेरी क्लियर कि हमें एक ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए था जहां पे रिस्क फैक्टर कम से कम हो और स्लो एंड स्टेडी हमें एक डिसेंट सा रिटर्न मिल जाए। एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी जो संजय जी भी बोल रहे थे कि वी आर रेटेड अमंग द टॉप 5 PMS हाउसेज इन द मार्केट। एंड ये हमारा जो स्ट्रेटेजी है इट्स अ टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी आई कैन से कि जो 4 साल से हमने मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखी है, कोविड क्राइसिस भी देख लिया और अभी रिसेंट का भी जो करेक्शन देख लिया, एवरी करेक्शन में दिस स्ट्रेटेजी हैज प्रूवन टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी whenever the challenges are there in the market। ये पोर्टफोलियो की एक खासियत है कि इसमें डाउनसाइड वॉलेटिलिटी बहुत कम आती है, डाउनसाइड रिस्क रिलेटिवली कम आती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि डाउनसाइड नहीं होता है, डाउनसाइड होता है, लेकिन कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम रहती है एंड अपसाइड पे आपको एक स्लो एंड स्टेडी डिसेंट रिटर्न मिल जाता है। इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में हम लोग जितने भी कंपनीज इंडिया में लिस्टेड है बट ओन एंड प्रमोटेड बाय फॉरेन प्लेयर्स लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉरेन प्लेयर हो गया, मारुति सुजुकी मोटर्स फॉरेन प्लेयर हो गया आपका, सेम वे बाटा, कोलगेट, ग्लेक्सो, फाइजर, सनोफी, एसकेएफ बेयरिंग, शेफलर इंडिया, ग्राइंडवेल नॉर्टन, हनीवेल ऑटोमेशन, ABB, सीमेंस, मैं रैंडमली नेम्स ले रहा हूँ। ऐसे काफी सारे कंपनीज जो इंडिया में काम कर रही है बट इनका प्रोमोटर ग्रुप है जो इंडिया के बाहर बैठ के इसको कंट्रोल कर रहा है पूरा। तो इस सेट ऑफ यूनिवर्स में हम लोग काम कर रहे हैं। 90 ऐसी कंपनियां हैं जो इंडियन मार्केट में जहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, उस 90 में से 18 से 20 कंपनी में हम पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये थीम हमने क्यों चूज किया मल्टीनेशनल कंपनीज पोर्टफोलियो का? रीजन बीइंग these are tried and tested business model, quite successful business model है, quite innovative होते हैं ये सारे कंपनी, टेक्नोलॉजी वाइज काफी एडवांस रहते हैं, ब्रांड बार्गेनिंग का पावर काफी स्ट्रांग होता है
एंड इंडियन मार्केट में एक ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए ये मल्टीनेशनल कंपनीज में इंडिया में भी सेटअप रखा हुआ है अपना. सो दे आर हियर गोइंग टू स्टे फॉर मेनी मोर मल्टी डेकेड. ऐसा नहीं है कोई फ्लाई बाय नाइट कि भाई रातों रात गायब नहीं होने वाली है ये सारी कंपनियां. कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड देखेंगे तो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में काम कर रहे हैं, रेयरली हमने कोई मिसमैनेजमेंट या फ्रॉड जैसा कोई इंसिडेंस दिखा है. एंड दे वुड नेवर इंडल्ज इनटू एनी सच प्रैक्टिसेस जहां पे ग्लोबल इमेज उनके खतरे में आए. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड क्वाइट स्ट्रांग रहता है. इन्वेस्टर को काफी ट्रस्ट है ऑन द मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ दीज बिजनेसेस. एंड प्रोफेशनल्स को हायर करके बिजनेस चला रहे हैं राइट नाउ. कोई सिंगल प्रमोटर नहीं है जो अपनी कंपनी को चला रहा है. देयर इज अ प्रोफेशनल्स लोग बैठे हैं ऑन द टॉप जो उसको मैनेज कर रहे हैं पूरा. बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ की बात कर ले, मल्टीनेशनल कंपनीज, मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज आर कैश रिच कंपनी. उनके कैश फ्लोज हमेशा पॉजिटिव रहते हैं. उनका डेट लेवल देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी आर जीरो डेट कंपनी और वेरी लो डेट कंपनी. एंड दे आर नॉट ग्रीडी इन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस के जस्ट टू जरूरत से ज्यादा फास्ट ग्रो करने के चक्कर में बैलेंस शीट पे स्ट्रेस लेके काम करो, वैसा काम नहीं करते हैं. दे वुड लाइक टू ग्रो स्लो एंड स्टेडी बट विद वेरी गुड प्रॉफिटेबिलिटी. ऑपरेटिंग मार्जिन पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, बैलेंस शीट पे कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, भले ही हम धीरे धीरे क्यों ना बढ़े. सो दैट इज अ पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ दीज मल्टीनेशनल कंपनीज पोर्टफोलियो. हमने एक एनालिसिस किया था, जैसे अपने पास निफ्टी इंडेक्स है सेम वे वैसे ही निफ्टी का एक एमएनसी इंडेक्स भी है. और लास्ट 15 साल के हिस्ट्री में हमें ये पता चला है निफ्टी एमएनसी इंडेक्स से निफ्टी इंडेक्स से बेटर रिटर्न दिया है. एंड द सेम लास्ट 15 साल के हिस्ट्री में हमें ये पता चला है कि वॉलेटिलिटी जो है एमएनसी इंडेक्स की निफ्टी इंडेक्स से भी कम है. तो एक बाजू रिटर्न्स हम निफ्टी से बेटर देने की पोटेंशियल भी रखते हैं और दूसरी बाजू हमारी जो वॉलेटिलिटी है, रिस्क फैक्टर है, वो निफ्टी से भी कम है. सो इट्स अ विन विन सिनेरियो. रिस्क रिवॉर्ड आपके दोनों आपके फेवर में चल रहे हैं जब हम ये प्रोडक्ट को देखते हैं. एंड दैट इज द रीजन मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा थीम है जो अक्रॉस ऑल द इक्विटी प्रोडक्ट्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट, वन ऑफ द लोएस्ट रिस्क प्रोडक्ट इन द इक्विटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ये स्ट्रेटेजी में हम लोग ने मल्टी कैप स्टाइल पोर्टफोलियो अडॉप्ट किया. हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में हम पार्टिसिपेट करते हैं. टॉप 10 की होल्डिंग्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. केएसबी, ब्लू डार्ट, मारुति, ग्राइंडवेल, एसकेएफ, सीमेंस, क्रिसिल. वेरी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स नहीं है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर एक्सेप्ट फॉर वन कंपनी क्रिसिल जो हमने रेटिंग, मोर ऑफ अ रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी है बट प्योर बैंकिंग वाला सेक्टर नहीं है. तो ये ऑल्सो एक वन ऑफ द रीजन बन जाता है कि अगर जिसके भी पोर्टफोलियोज में आपके पास लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स है या लार्ज कैप के स्टॉक्स वगैरह लेके रखे हैं तो कहीं ना कहीं आपका एलोकेशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक में जरूर रहेगा. अगर आपको फर्दर एलोकेशन करना है लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो के अंदर तो आप एमएनसी को कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज एक डिफरेंट टाइप क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में आप पार्टिसिपेट करोगे एंड स्टिल यू वुड बी एबल टू डाइवर्सिफाई एंड रिड्यूस द ओवरऑल रिस्क इन द पोर्टफोलियो. मैं लार्ज कैप के साथ क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये ब्यूटी है इस प्रोडक्ट की. भले ही मेरा पोर्टफोलियो दिखने में आपको मल्टी कैप जैसा दिख रहा है जहां पे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आपको एलोकेशन ज्यादा दिख रहा है, बट ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप का जो डेफिनेशन है वो सेबी ने डिफाइन किया है. इन इंडियन मार्केट टॉप 100 कंपनी लार्ज कैप है, 101 से 250 मिड कैप है एंड 250 के नीचे सारे स्मॉल कैप है. बट जहां जहां पे भी ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में लिस्टेड है वो मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में हो सकती है उसका प्रेजेंस बहुत छोटा है, वो मिड कैप या स्मॉल कैप के कैटेगरी में आता है. बट सेम कंपनी उसका मैं ग्लोबल एंगल, ग्लोबल डेफिनेशन से देखता हूँ तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कंपनीज जो है वो लार्ज कैप के क्वालिटी को दर्शाता है. तो फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव सारे के सारे लार्ज कैप है. इंडियन मार्केट में मुझे मल्टी कैप जैसा पोर्टफोलियो मुझे दिख रहा है. तो आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी टू हैव दिस मल्टी कैप काइंड ऑफ अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन माय पोर्टफोलियो. ये लास्ट 3 साल का जो परफॉर्मेंस रहा है, जो टॉप में आपको जो लाइन दिख रही है वो हमारे एमएनसी पीएमएस की है और उसके नीचे जो है वो निफ्टी इंडेक्स एंड निफ्टी एमएनसी इंडेक्स. हमने हमारे खुद के बेंचमार्क इंडेक्स एमएनसी इंडेक्स को भी बीट किया है ओवर द लास्ट 3 इयर्स एंड हमने निफ्टी इंडेक्स को भी बीट किया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. और ये सारा जो परफॉर्मेंस है नेट ऑफ ऑल चार्जेस एंड एक्सपेंसेस है. ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ. ये जो चार्जेस है लास्ट 1 ईयर का रिटर्न आज आपने देखा रहेगा काफी सारे फंड की जो लास्ट 1 ईयर में जो स्टेटस हुआ है, काफी सारे फंड फ्लैट हो चुके हैं. आपका 1 ईयर का रिटर्न पूरा काफी लोगों का और इवन नेगेटिव भी हो चुका है. स्टिल this portfolio is standing tall at this point of time. 1 year का रिटर्न 4.2% पॉजिटिव है, 2 years का रिटर्न 20.8 CAGR पर एनम रिटर्न है,
3 years में भी 17% CAGR रिटर्न है। तो दिस इज वन पोर्टफोलियो। अगर आपको बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस नहीं है मार्केट के अंदर, आपको लगता है 12-15% स्लो एंड स्टेडी बन जाना चाहिए, वॉलेटिलिटी कम से कम हो, देन आई वुड सजेस्ट ये पोर्टफोलियो को आप जरूर माइंड में रखिए, बिकॉज दिस पोर्टफोलियो हैज प्रूवन दैट काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी कि जहां पे आपको रिटर्न एक अच्छा मिल जाता है एंड स्लो एंड स्टेडी मिल जाता है एंड रिस्क फैक्टर इज काफी लो है इसके अंदर। पोर्टफोलियो में काफी सारे ग्रोथ के ट्रिगर्स है, अपॉर्चुनिटी है। काफी टाइम ऐसा भी लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव तो नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात मैंने बता दिया, जैसे मल्टी कैप अप्रोच है जहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी है। मिड एंड स्मॉल कैप के पास पॉसिबिलिटी है कि बेटर ग्रोथ दिखा सके। काफी सारे ऐसे B2B वाले कंपनी है, इंडस्ट्रियल साइक्लिकल ओरिएंटेड कंपनी है जो नीश प्लेयर्स है अपने अपने सेगमेंट में, बट जब मार्केट रिकवरी करती है, अच्छा ग्रोथ करती है मार्केट, तो वहां पे बहुत अच्छा मुझे परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। तो ऐसे काफी सारे कंपनीज में हमने पास्ट में भी पार्टिसिपेट किया है, लाइक ग्राइंडवेल नॉर्टन, KSB लिमिटेड, GMM फॉडलर हो गया, आपका ईसब इंडिया हो गया, इलांटास बैक हो गया, हनीवेल ऑटोमेशन। मैं रैंडमली नेम्स ले रहा हूँ आपके सामने। ऐसे काफी सारे सेगमेंट है। तो हम लोग टाइम टू टाइम क्या करते हैं, वी ट्राई टू शिफ्ट द स्ट्रेटेजी डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन, कि भाई जो डिफेंसिव वाले कंपनीज है, टिपिकल FMCG फार्मा वाले कंपनी है जो ब्लू चिप है, वहां पे कितना पोर्शन रखना है और हमें इंडस्ट्रियल साइक्लिकल में कितना पोर्शन रखना है। एंड दैट स्ट्रेटेजी हैज रियली हेल्प टू मेंटेन द अल्फा क्रिएशन। हमारा जो स्ट्रेटेजी रहता है कि ऐसा नहीं कि हम बाय एंड होल्ड करके बैठ जाए, यहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजी पूरा एक्टिव मैनेजमेंट पे चलता है। हमारे जो तीनों स्ट्रेटेजी है, नॉट ओनली MNC बट हमारा जो इम्प्रेस और डेसिनियम, ऑल द 3 स्ट्रेटेजीज में वी आर क्वाइट एक्टिव इन मैनेजिंग। जो हमारी एक स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बता देता हूँ, हम लोग किस पे फोकस करते हैं। जो हम जिसको नाम दिया है हमने रिव्यू स्ट्रेटेजी। रिव्यू मतलब रेगुलर व्यू, व्यू का मतलब होता है VIEW, V स्टैंड्स फॉर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन को हमेशा चेक में रखते हैं कि भाई जरूरत से ज्यादा किसी स्टॉक में वैल्यूएशन बढ़ जाता है, जो 3 साल बाद होना था अगर 1 साल में ही आ गया, तो कहीं ना कहीं देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन करेगा या तो प्राइस वाइज करेक्शन करेगा। तो जैसे ही बहुत ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं हमें उससे एक्टिव एक्शन लेना पड़ता है, एंड वी माइट इवन सेल आउट दैट कंपनी एंड मूव इनटू अनदर कंपनी। सेकेंड होता है आई स्टैंड्स फॉर इम्पैक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट। अगर कोई इवेंट ऐसा आ जाता है जिसके कारण आपका जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है या तो जो फ्यूचर ग्रोथ की जो अर्निंग्स की जो पॉसिबिलिटी जो दिख रही थी, कहीं ना कहीं उस पर डैमेज हो रहा है, एंड दैट इवेंट इज गोइंग टू हैव मीडियम टू लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट रादर देन अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। तो वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इवेंट इम्पैक्ट के कारण हमें पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी में चेंजेस करनी पड़ती है, जैसे कि कोविड के टाइम पे भी हुआ, और वेरी रिसेंटली जो हमने ये इन्फ्लेशनरी जो चैलेंजेस आए थे, ऑयल और मेटल जो बढ़े थे, उस टाइम पे भी एक बड़ा चैलेंज आ गया था जहां पे हमें शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी थी हमारे स्ट्रेटेजीज में। ई स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन, कि अर्निंग्स जो गोइंग फॉरवर्ड जो हमारे जो अर्निंग्स एक्सपेक्ट, अर्निंग्स विजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कि अगर अर्निंग्स विजिबिलिटी में कहीं ना कहीं अगर खतरा आता है तो वहां पे भी हम एक्शन लेते हैं। अर्निंग्स विजिबिलिटी मतलब ये कहता हूँ, जैसे कोई कंपनी आज हमने ली, हमने एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे कि भाई 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 1 साल के बाद ये नंबर्स आएंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के, ये 2 साल के बाद ये नंबर्स आने चाहिए। अगर बैक टू बैक 1 क्वार्टर गया, 2 क्वार्टर गया, कहीं ना कहीं नंबर्स हमारे एक्सपेक्टेशन के साथ मीट नहीं कर रहे, दैट मीन्स हमारा रीडिंग कहीं ना कहीं गलत गया है, या तो फिर कोई ऐसे चैलेंजेस आ चुके हैं जो हमने पहले एंटिसिपेट नहीं किए थे। अगर अर्निंग्स विजिबिलिटी ड्रॉप हो रही है, एक्सपेक्टेशन ड्रॉप हो रहा है, तब सेकंड थर्ड क्वार्टर डाउन द लाइन हमें उस पर एक्शन लेना है। फिर चाहे वो लॉस में ही क्यों ना हो कंपनी, मुझे फिर भी हम बेच के निकल जाते हैं रादर देन जस्ट स्टेइंग कनेक्टेड विद दैट कंपनी। अगर अर्निंग्स विजिबिलिटी मेंटेन है, ग्रोथ नंबर्स हमारे एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहे हैं, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपनी, वी विल कंटिन्यू टू राइड ऑन टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। और लास्ट जो है WW स्टैंड्स फॉर वेटेज। कहीं पे भी अगर सिंगल स्टॉक कंपनी का वेटेज इन माय पोर्टफोलियो 9 या 10% तक जाता है, तो हम उसको वापस 6-7% पे लाके छोड़ देते हैं। मतलब वी डू पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। ये पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हमने मल्टीपल स्टॉक्स में किया है, बिकॉज काफी सारे स्टॉक्स, आई कैन से 60% ऑफ द बास्केट हैज ऑलरेडी डन वेरी गुड फॉर अस, और कहीं ना कहीं उनका वेटेज बीच बीच के पीरियड में कहीं ना कहीं बढ़ गए थे, तो हमने उसको प्रॉफिट बुकिंग करके हमने वेटेज को रिड्यूस किया है, जस्ट टू एंश्योर कि कोई नया क्लाइंट भी अगर सिस्टम में आता है उसको एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिले यहाँ पे। तो ये सारे सम सक्सेसफुल आइडियाज है
जहाँ पे हमने कब बाय किया था, कब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया, लाइक एबॉट इंडिया हो गया, जीएमएम फॉडलर वगैरह हो गया, कोफॉर्ज हो गया, यहाँ पे ऐसे काफी सारे सेक्टर्स स्टॉक्स है जहाँ पे हमने ये सब एक्टिविटी की है। ये जस्ट एक फ्यू एग्जांपल्स हमने आपके सामने रखे हुए हैं यहाँ पे। सो दिस इज अबाउट मल्टीनेशनल कंपनीज पोर्टफोलियो। दूसरी जो हमारी जो स्ट्रेटेजीज हैं उसके बारे में बता देता हूँ मैं, दैट इज इम्प्रेस पोर्टफोलियो एंड डेसिनियम अपॉर्चुनिटी। दोनों पोर्टफोलियो जो है वो भी थोड़े एग्रेसिव नेचर के हैं कंपेयर टू एमएनसी, बिकॉज आज काफी सारे ऐसे भी क्लाइंट्स रहते हैं जिनको लगता है कि भाई हमें एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो की तरफ जाना है, थोड़ा बेटर रिटर्न चाहिए, एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा रिस्क लेने को भी तैयार है। सी इट्स ऑल अबाउट रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, आप किस हिसाब से अपने स्ट्रेटेजी को प्लेस करते हो। ये जो हमारा इम्प्रेस पोर्टफोलियो है जिसको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, दिस इज अ मल्टी कैप अप्रोच जहाँ पे 75 to 80% मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जाता है, 20% हमारा लार्ज कैप में जाता है। बट ये जो मिड एंड स्मॉल कैप है, दीज आर क्वालिटी मिड एंड स्मॉल कैप। यहाँ पे हम कोई स्टॉक डिस्कवरी नहीं कर रहे हैं कि भाई किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया स्टॉक, हम ही पहले थे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, वैसा काम करना ही नहीं है। मार्केट में नोन कंपनीज है जो वेरी वेल ट्रैक, वेरी वेल रिसर्च, उसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर कंपनीज में जाना है। तो ये जो पोर्टफोलियो जब हमने स्टार्ट किया था 1000 करोड़ का मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन रखा था कि भाई उसके ऊपर की कंपनी होनी चाहिए। 2017 में 400 कंपनियां ऐसी थी जो 1000 करोड़ मार्केट कैप के ऊपर ट्रेड कर रही थी। ये पोर्टफोलियो के अंदर हमने बैलेंस स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया है। 2/3 ऑफ द मनी जो है हम ग्रोथ स्टाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनी अच्छी कर रही है और फ्यूचर भी एक्सपेक्टेड है अच्छी करेगी, बट जो कंपनी ऑलरेडी अच्छी कर रही है तो आपको उसको बेटर प्राइस देके लेना पड़ता है। और 1/3 ऑफ द मनी जो है हम लोग कॉन्ट्रा स्टाइल में जाते हैं, वैल्यू स्ट्रेटेजी में जाते हैं, जहां पे ये कंपनीज आपको चीप वैल्यूएशन में मिल रही थी बिकॉज पास्ट में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, बट अभी एक एक्सपेक्टेड टर्न अराउंड है कि भाई इसमें टर्न अराउंड हो सकता है। तो एक जब टर्न अराउंड होता है तो एक शॉर्ट पीरियड में आपको एक बड़ा रिटर्न बन सकता है। दोनों स्ट्रेटेजी के अपने अपने प्लस एंड माइनस पॉइंट्स है, बट यस, मोर फोकस ऑन द ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज, 1/3 ऑफ द मनी गोज फॉर अ वैल्यू और अ कॉन्ट्रा स्टाइल। ये पोर्टफोलियो में भी जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, आज काफी लोग पूछते हैं कि भाई आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो स्टॉक, क्या करते हो, सबका अपनी अपनी थॉट प्रोसेस रहती है, फिलोसॉफी रहती है। बट कहीं ना कहीं अगर घूम फिर के देखेंगे तो सबका वे ऑफ एनालिसिस सब सिमिलर ही होता है। सब लोग उसको नामकरण डिफरेंट वे में देते हैं, भाई हम ये एनालिसिस करते हैं, हम वो एनालिसिस करते हैं, बट अल्टीमेटली कंपनी वही है, सबके पास डेटा पॉइंट्स वही है, सबके पास वही पीएनएल है, सबके पास वही बैलेंस शीट है, सबके पास वही मैनेजमेंट का व्यू है। तो कोई डिफरेंट चीज सबके पास नहीं मिल रही है, बट सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनालिसिस करते हैं। पास्ट एनालिसिस से बिजनेस मॉडल की पता चल जाती है, प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि आज की तारीख में कंपेयर टू द हिस्टोरिकल एवरेजेस कंपनी की पोजीशन क्या दिख रही है। फ्यूचर एनालिसिस से हमें ग्रोथ एनालिसिस का पता चल जाए कि भाई गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी में प्रॉफिट के नंबर्स किस हिसाब से ग्रो हो सकते हैं। एंड लास्ट हम लोग जो देखते हैं दैट इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनेजमेंट क्वालिटी किस प्रकार की है। तो दिस इज नथिंग बट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनालिसिस। उसमें एन नंबर ऑफ रेशियो एनालिसिस आ जाते हैं, एनालिटिकल्स आ जाते हैं, वो सारे पैरामीटर्स हम लोग इवेल्युएट करने के बाद वी ट्राई टू फिगर आउट वेदर we are supposed to enter into this particular set of company or not. It's a bottom up approach हम लोग जो फॉलो करते हैं। एक पूरा स्क्रीनिंग होती है, हमारे जो नंबर ऑफ स्टॉक का जो यूनिवर्स है उसमें से पहले क्वांटिटेटिव बेसिस पे पूरा स्क्रीनिंग होता है। आफ्टर क्वांटिटेटिव एनालिसिस फिर हम लोग उस पे सब्जेक्टिव एलिमेंट को ऐड करके फिर वी ट्राई टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर फॉर दिस कंपनी। ये टॉप 10 कंपनीज है जो आपके सामने हम लोग दिखा रहे हैं। नॉन कंपनीज है, जैसे मैंने बताया था, कोई भी ऐसा स्टॉक डिस्कवरी वाला काम नहीं करना है, काफी सारे प्लेयर्स को पता है इस कंपनीज के बारे में। इट्स ऑल अबाउट एक्टिव मैनेजमेंट। अगर आपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज किया है तो यू कैन स्टिल जनरेट एन अल्फा ओवर एंड अबव द बेंचमार्क इंडेक्स। 18 स्टॉक्स है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर भी। जितने भी पोर्टफोलियो है हमारे उसमें 17-18 स्टॉक्स रहते हैं, मैक्सिमम 20 स्टॉक्स पे हम जाएंगे, 20 को क्रॉस नहीं करने वाले हैं। ये यहाँ से आपको एवरेज मार्केट कैप से क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पे अगर आप स्मॉल कैप देखोगे ध्यान से 8467 करोड़, मतलब स्मॉल कैप का भी जो वेटेड एवरेज मार्केट कैप इज 8000 करोड़। मतलब कोई भी माइक्रो कैप टाइनी कैप वाले कंपनीज इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है।
ये हमारा रिटर्न है एज ऑन 30th जून 2022। लास्ट 1 ईयर फ्लैट रिटर्न है 0.2%, फिर भी पॉजिटिव चल रहा है कंपेयर टू निफ्टी 500 इंडेक्स जो हल्का सा नेगेटिव है। इवन आपका निफ्टी इंडेक्स भी हल्का सा नेगेटिव है लास्ट 1 ईयर के अंदर। 2 साल का रिटर्न 34.4% CAGR है, 3 साल में 19.8% CAGR है। अगर ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं आज की तारीख में, ऐसा ही सिमिलर ग्राफ जो था जब काफी सारे चीजें नेगेटिव दिख रही थी, कोविड के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, कि भाई जब स्क्रीन में सामने अगर हम पोर्टफोलियो दिखाते हैं, यार लास्ट 5-6-1 साल से तो पूरा नेगेटिव चल रहा है, उस टाइम पे हिम्मत करके जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया उन्होंने लास्ट अगले 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न बना है। तो हम लोग मार्केट को बीट डेफिनेटली कर रहे हैं। लास्ट 3 साल से हमारा 19.8% CAGR रिटर्न आया है। एक्सपेक्टेशन भी यही है कि अगर किसी को लगता है 15-18% तक का CAGR रिटर्न कमाना है net of all charges and expenses, then I would suggest Impress is also one of the best strategy that one can look at it. ये सेम स्ट्रेटेजी जो हम लोग MNC में फॉलो कर रहे हैं। MNC में थोड़ा टर्नओवर कम होता है बिकॉज नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है, तो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होते MNC में। इम्प्रेस पोर्टफोलियो में हल्का सा ट्रांजैक्शन बढ़ जाता है। यहाँ पे इसका जो टर्नओवर रेशियो इज दैट इज अराउंड 50%। MNC में जो हमने देखा था पहला वाला जो प्रोडक्ट, वहां पे 27% का हमारा टर्नओवर रेशियो है। बाकी सेम रेगुलर व्यू स्ट्रेटेजी जो रिव्यू स्ट्रेटेजी है, वैल्यूएशन इन चेक, इम्पैक्ट ऑफ इवेंट चेक, यहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी पे चेक और वेटेज पे चेक, ये सब चीज हम यहाँ पे भी वेरी वेल हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब सक्सेस स्टोरीज है आपके सामने, लाइक दीपक नाइट्राइट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, आरती ट्रक्स हो गया। बजाज फाइनेंस हमने वापस लिया है, हमने प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे, बट अभी 2 साल से वो बजाज फाइनेंस वापस घूम फिर के वही लेवल पे हमें मिल गया है। अब हमने वापस री एंटर किया है बिकॉज हमें लग रहा है कि क्रेडिट साइकिल अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे पिकअप होना स्टार्ट होने वाली है। सो वी आर गोइंग केयरफुली इनटू दिस बैंकिंग एंड फाइनेंस सेगमेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज ऑल अबाउट इम्प्रेस पोर्टफोलियो, इम्प्रेस स्ट्रेटेजी। इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ राइट नाउ। आई विल जस्ट टेक 5 minutes मोर एंड देन वी विल डेफिनेटली टेक द Q&A सेशन। जो हमारा जो थर्ड स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर मैं वेरी क्विकली एक बता देता हूँ बिकॉज बहुत छोटा हिस्ट्री है उसका, 6-8 महीने ही हुए हैं उसको। दैट इज डेसिनियम अपॉर्चुनिटी। I hope screen is visible in front of you, Sanjay ji. Yes, very much. Right. तो डेसिनियम अपॉर्चुनिटी ये जो हमारा एक न्यू पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो हमने नवंबर में लॉन्च किया था। डेसिनियम का मींस डेकेड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। जिस हिसाब से आज इंडियन मार्केट ने एक ग्रोथ पकड़ा है ऑन द अपर साइड, सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ चाइना में दिखा था ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 2008 के बाद जिस हिसाब से चाइनीज इकोनॉमी ग्रो हुई थी, सेम स्टेज पे आज इंडिया खड़ा हुआ है। काफी सारा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हो रहा है, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी पिकअप हो रही है, न्यू एज काइंड ऑफ एन इकोनॉमी है स्टार्टेड टू पिकअप, एंड काफी सारे ऐसे नए सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं जो इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ तक लेके जाएंगे। दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट इमर्जिंग बिजनेस। तो ये जो पोर्टफोलियो है इसमें हमने डुअल फोकस स्ट्रेटेजी रखा है। फर्स्ट पार्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, जहां पे हम इमर्जिंग बिजनेस को टारगेट करने वाले हैं। और जो सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी है दैट इज बिजनेस अप साइकिल, के भाई ये काफी सारे ऐसे सेगमेंट है, सेक्टर्स है जहां पे एक बड़ा बिजनेस अप साइकिल चल रहा है जिसको पार्टिसिपेट करना है। दोनों के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो इमर्जिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, सम ऑफ द सेक्टर्स जहां पे काफी सारा विजिबल साइन दिख रहा है आज की तारीख में, जैसे ईवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, आज 5 से 10 साल के ग्रोथ के हिसाब से लग रहा है कि भाई ईवी एज अ टेक्नोलॉजी वुड बी वेरी वेल एक्सेप्टेड और यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी काफी बड़ी है। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी भी आप देख लो, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, जो ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल चल रहा है पेट्रोलियम में, तो कहीं ना कहीं काफी सारा इन्वेस्टमेंट जो है, पैसा जो है इस नए सेगमेंट में बहुत आ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से भी पुश है and even from the private players also lot of money is getting poured into this particular area. Same way robotics, artificial intelligence, industrial automation, e-commerce वाले जो players आ गए मार्केट के अंदर, digital aggregators जो आ गए, they are just changing the way this business are supposed to be done. काफी सारा पैसा मूव हो रहा है डिफेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी। 4 महीने पहले हमारे पास एक न्यूज आई थी, जो ब्रह्मोस मिसाइल हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं वो we are now going to supply it to Philippines. मतलब गवर्नमेंट का भी इंटेंशन है कि भाई 75% ऑफ डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट हमें इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना है। तो ऐसे काफी सारे बिजनेसेस हैं, वी कैन कीप ऑन टॉकिंग। बहुत सारे बिजनेसेस में बहुत बड़े चेंजेस
आज की तारीख में आ रहे हैं, जो जहाँ पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। सेम वे जो बिजनेस अप साइकिल की अगर मैं बात कर लूं, काफी सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे उनके लाइफ साइकिल के अंदर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, उसके बाद पीरियड ऑफ एक्सपेंशन भी आते हैं। जो पीरियड ऑफ एक्सपेंशन होते हैं उसे हम बिजनेस अप साइकिल कहते हैं। तो अगर रीसेंट एग्जांपल की बात करूं तो रियल एस्टेट मार्केट ले लीजिए, 2016 से लेके 2020 तक पूरा स्लोडाउन चल रहा था। डीमोनेटाइजेशन आया सबसे पहले, फिर जीएसटी आ गया, फिर रेरा आ गया, इन बिटवीन काफी स्लो डाउन चल रहा था। बट लास्ट 1.5 ईयर से हमें मोमेंटम पिकअप होते हुए दिख रहा है। और एक बार जब ये सेक्टर में मोमेंटम बिल्टअप स्टार्ट हो जाता है तो नॉर्मली वो 4-5 साल तक मेंटेन रहता है। तो ये कंपनीज जो रियल एस्टेट की ओरिएंटेड कंपनीज है, या जो प्रॉक्सी कंपनीज भी है जो रियल एस्टेट के ग्रोथ के साथ उनको भी बेनिफिट होता है, तो वो सारे कंपनीज में एक बिजनेस अप साइकिल चल रहा है आज के तारीख में। सेम वे दूसरा सेकेंड वे ऑफ बिजनेस अप साइकिल ये होता है कि काफी सारे ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इंडिया के पास बहुत सारी पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, बस उसमें हमें और कैपेसिटी एडिशन करनी है। अगर वो कैपेसिटी अगर बिल्डअप हो जाती है तो हम ग्लोबल मार्केट में एक ग्लोबल सप्लाई पार्टनर बन सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे सेक्टर्स है, लाइक टेक्सटाइल कंपनीज हो गई, केमिकल कंपनीज हो गई, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, आपकी इलेक्ट्रिकल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, इंजीनियर प्रोडक्ट कंपनीज हो गए। काफी सारे ऐसे सेगमेंट्स है जहां पे गवर्नमेंट को लगता है वी हैव दैट पोटेंशियल। तो गवर्नमेंट भी पीएलआई स्कीम्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स, जो आत्मनिर्भर ड्राइव पूरा जो चल रहा है, दे आर इंसेंटिवाइजिंग टू स्केल अप द बिजनेस ओवर हियर। तो यहाँ पे भी एक बिजनेस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जो है, जो बिजनेस अप साइकिल हमें क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो ये दोनों में हम पार्टिसिपेट करेंगे, ये बिजनेस अप साइकिल एज वेल एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। स्ट्रेटेजी तीनों, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे भी हम 1000 करोड़ मार्केट कैप के नीचे किसी भी कंपनी को एंटरटेन नहीं करते हैं। दीज आर द टॉप 10 कंपनीज जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर, ग्रीन पैनल, इजी ट्रिप पैनल, क्राफ्ट्समैन ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओबेरॉय रियल्टी, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, प्राज इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, नोन कंपनीज है। हमें कोई भी ऐसे नए नए स्टार्टअप कंपनी या जो रिसेंटली लिस्टेड हुए हैं, जो कैश फ्लो बर्न कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी आ नहीं रही है, वैसे कंपनी में हमें इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि कंपनीज लाइक पेटीएम आ गया, जोमेटो आ गया, कि जो पैसा ही नहीं बना रहे तो उस कंपनी में जाने के मतलब नहीं है। बेटर है नॉन कंपनी, पुरानी कंपनी जिन्होंने ऑलरेडी अपना एक इंक्लिनेशन दिखाया है कि भाई हाँ, हमें भी न्यू एज इकोनॉमी तरफ शिफ्ट होना है, हमें भी मार्केट के इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट के साथ हमें अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। एंड मेनी ऑफ द बिग कंपनीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चेंजिंग देमसेल्फ with the new age kind of an economy over here। ये हमारा परफॉर्मेंस है। जस्ट 7-8 महीना हुआ है दिवाली के बाद। दिवाली के बाद आपको भी पता है मार्केट कॉन्स्टेंटली करेक्टिव मोड में चल रहा था। तो सिंस इंसेप्शन का 11% नेगेटिव रिटर्न चल रहा है। बट अगर आप इंडेक्स के सामने देखो, निफ्टी 500 हमसे ज्यादा गिरा है। सो कंपेयर टू द मार्केट, ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स से हमारा पोर्टफोलियो का जो फॉल है वो रिलेटिवली कम है, इन स्पाइट ऑफ पोर्टफोलियो बीइंग वेरी एग्रेसिव। ये जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे एग्रेशन थोड़ा ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। आई कैन से इवन हमारा एमएनसी और इम्प्रेस के कंपैरिजन में ये पोर्टफोलियो में थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड इज लिटिल ऑन अ हायर साइड, बिकॉज ये जितने भी कंपनीज है उनके पास से ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी काफी हाई है। और कहीं ना कहीं अगर ग्रोथ में फॉल्टर होता है तो यहाँ पे करेक्शन की भी पॉसिबिलिटी होती है। सो वी आर एक्टिवली कीपिंग अ ट्रैक ऑन ईच एंड एवरी स्टॉक इन दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट यस, इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इतनी है कि भाई यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्टेशन की बात करो तो 15-20-25% में भी यहाँ पे सीएजीआर रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी है। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि ये मार्केट में जो करेक्शन हो चुका है और जो करेक्टेड प्राइस में अगर कोई एंटर करेगा तो डेफिनेटली उसको एक विन विन सिनेरियो, उसको एक एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। किसी को कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस जो भी है आप वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। संजय जी, आई थिंक सम क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन देयर इनटू दिस चैट बॉक्स। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस में हम लोग अवॉइड करेंगे। अगर कोई मार्केट रिलेटेड क्वेश्चंस है या आई कैन से प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरीज क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू एड्रेस द सेम। Sure. Like Amit ji, there are some questions like general like उनका question है कि like I think the first question was कि आपका Mr. विशाल ने पूछा था कि whether you want to invest lump sum amount or for long term
or do you suggest like mutual fund or shares? So Vishal, आपके लिए आंसर ऐसा है कि like see if this PMS strategy they basically based on the SEBI's rules there are certain limitations like आपको कितना amount invest करना है. But any form of investment जैसा आप चाहते हो कि like whether it is shares or mutual fund or PMS उसमें lump sum और SIP दोनों options available है. मतलब you can invest in a staggered manner. अगर आपके पास amount है lump sum तो पीएमएस सर्विसेज लेते हैं लमसम और वो उनके हिसाब से जैसा मार्केट डायरेक्शन है या मार्केट व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं. मैं बता देता हूँ जैसे कि हमारा पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 50 lakhs. नाउ यूजुअली अगर आप में से किसी भी ऐसे क्लाइंट्स है या आपके नोन फ्रेंड्स है जिसके पास भी एक फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली विच इज नॉट यूज फॉर योर डे टू डे कंजप्शन, इट इज प्योरली फॉर द वेल्थ क्रिएशन. अगर आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स मोर देन 2 crores के हैं या तो फिर आप प्योरली इक्विटी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो और आपके पास इक्विटी के एसेट्स मोर देन 1 crore के हैं तो डेफिनेटली पीएमएस एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम कर सकता है. बट अगर आप बोलते हो कि नहीं भाई मेरे पास जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स है सारे को मैं मिला भी लूं फिर भी वो मुश्किल से 1 crore के अंदर ही बैठता है, देन डेफिनेटली आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप 50 लाख पीएमएस स्ट्रेटेजी में डालिए. ऑल्दो मेरे लिए तो फायदा है बट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आई कैन स्टिल से कि एटलीस्ट आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन में डिफरेंट एसेट क्लासेस में आप डिवाइड करके उसको डाइवर्सिफाई करके चलिए. वन गुड थिंग हमारा जो पीएमएस स्ट्रेटेजी हम उसमें एक ऑफर करते हैं डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे अगर आप समझो ये सोचते हो कि आप 50 लाख अगर आप समझो 5 से 6 म्यूचुअल फंड में डाल के आप उसको बेनिफिट ले सकते हो, सेम काइंड ऑफ थिंग आप यहाँ पे हमारे पीएमएस में भी कर सकते हो कि जो 50 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है अगर आपको चाहिए नॉट ओनली फॉर वन सिंगल स्ट्रेटेजी, अगर आपको लगता है उसको 2 या 3 स्ट्रेटेजी में आपको स्प्रेड करना है तो वो ऑप्शन हम प्रोवाइड करते हैं कि एक बार जो आप सोचो कि हाँ मुझे थोड़ा कंजर्वेटिव में एमएनसी में 25 लाख दे देना है, 15 लाख मुझे इम्प्रेस को देना है और दूसरा 10 लाख मुझे डेसिनियम को देना है, तो अगर आपको वो स्ट्रेटेजी करके डिवाइड करना है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें पीएमएस में हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. और किसी को कम अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो वी हैव द लाइक ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी लाइक इक्विटी एडवाइजरी सर्विसेज जहाँ पे कम अमाउंट आप जितना चाहे उतने से शुरुआत कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन था इनका कि मिस्टर श्रीकांत पूछ रहे थे कि आर वी टुवर्ड्स द टर्मिनल पार्ट ऑफ पेन इन द मार्केट, हैव वी रीच्ड द बॉटम? सो डेफिनेटली देखो मार्केट टाइमिंग करना बहुत डिफिकल्ट बात है बट लुकिंग एट द करंट मैक्रो एनवायरनमेंट मैक्रो सेटअप एंड जिस हिसाब से जो ग्लोबल चैलेंजेस थे धीरे धीरे डिसाइड होते दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम डेफिनेटली बिलीव करते हैं कि ऑलमोस्ट हम लोग बॉटम हमने बना लिया है. थोड़ा कंसल्टेशन करेंगे. वी आर ईगरली वॉचिंग ये जून क्वार्टर्स के नंबर्स धीरे धीरे टीसीएस के नंबर्स आए, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा आया है, थोड़ा हल्का सा प्रॉफिट मार्जिन में चैलेंज आया है, एट्रिशन रेट्स उनके बढ़ गए थे. तो वन बाय वन जैसे जैसे कंपनीज के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द ग्लोबल मार्केट. और जो कंपनी के मैनेजमेंट है जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे लोग जिनके कंपनीज को मैनेजमेंट जो चला रही कंपनीज को उनसे हमें एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि भाई मार्केट में पेन बचा हुआ है या we are through with the pain in the market and going forward markets are looking robust. So maybe 1.5 month wait करना चाहिए but still it's a good time. अगर कोई longer term investments के लिए बात कर रहा है तो definitely one can look at these particular investment because we have already corrected. बट आपको 1-1.5 महीने का ये टाइम पीरियड मिल रहा है जहां पे आपको क्लैरिटी बहुत आ जाएगी कि वेदर वी हैव मेड द बॉटम और नॉट. पर्सनली आई बिलीव यस 90% कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ कि ये बॉटम इज इन प्लेस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अनलेस कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ से फर्दर डैमेज ना करे. एक मिनट, Mr. Mayur ji, I think you are the host. Can you please mute Mr. Dilip Sahai? There is actually just a second. किसकी गाड़ी में बैठते जा रहा है? हम लोग का वाला जो गाड़ी था. हाँ हो गया. संजय जी मैं आपको होस्ट वापस बना रहा हूँ. चलेगा. फोटो है.
हाँ संजय जी मैंने बना दिया आपका most of it. Okay. I think ठीक है. I think we are done. ठीक है. Thanks. So another question was like, okay, is it a good time to invest as a lump sum or should we stagger over the, मैं डेफिनेटली ये क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं ना, कोविड के टाइम पे भी सेम क्वेश्चंस आ रहे थे व्हेन मार्केट्स कोविड के टाइम पे करेक्शन हो चुके थे, फियर फैक्टर काफी था मार्केट के अंदर। उस टाइम पे भी लोग ऐसे बोल रहे थे कि भाई धीरे धीरे करके पैसा लगा रहा है। इवन हमारे पास भी जो पैसा आ रहे थे पीएमएस के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेटेजी रहता है डिप्लॉयमेंट का वो मैं बता देता हूँ। हम 40% डे 1 पे पैसा लगा देते हैं, बैलेंस 60% है हम उसको स्टैगर करते हैं, बट मैक्सिमम 1.5 से 2 मंथ्स के लिए, उससे ज्यादा हम लोग स्टैगर नहीं करते हैं। रीजन बीइंग हम ये बिलीव करते हैं कि भाई क्लाइंट ने अपना एक एसेट एलोकेशन पहले से ही बना लिया है अपने माइंड में कि कितना पैसा मुझे इक्विटी में लगाना है, कितना पैसा मुझे डेट में लगाना है, कितना रियल एस्टेट में लगाना है। तो क्लाइंट ने अपने एंड से वो एसेट एलोकेशन करने के बाद ही वो पीएमएस या इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट में आया है। नाउ विद इन इक्विटी में भी अगर मैं बहुत जरूरत से ज्यादा मार्केट टाइमिंग करने लगूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, जो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, कहीं ना कहीं वो डेविएट हो सकता है। बिकॉज मैंने इक्विटी के लिए तो एक रखी पैसा ऑलरेडी सोच के रखा था जो मुझे लगाना है, वही इक्विटी में से भी मैं धीरे धीरे करके लगाऊंगा और मार्केट हो सकता है कि भाई वो एकदम से शार्प यूटर्न अपसाइड पे ले ले, तो सब्सिक्वेंट जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो आपके हायर लेवल पे जाएंगे। हाँ वो बात अलग है अगर आपको लगता है कि आपका एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आते जा रहा है और धीरे धीरे उस इनकम को एक्यूमुलेट करते जाना है, तो नॉर्मली जो एसआईपी की लोग बात करते हैं कि भाई धीरे धीरे आपका रेगुलर मंथली फ्लो जो आते जा रहा है वो एसआईपी में आप लगाते जाइए, तो एसआईपी फॉर्मेट में। बट अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है, आपने एसेट एलोकेशन अपना ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है और आपने इक्विटी के लिए दे दिया है, तो बेटर यू गिव इट टू द प्रोफेशनल टू मैनेज, लेट द प्रोफेशनल टेक अ कॉल on that particular money, that how he wants to deploy it. Yes Sanjay. Acha, there are some if you see on the charts there are some questions. What are the charges for PMS? Okay, वेरी गुड। आई थिंक चार्जेस के बारे में हमने मिस कर दिया था, चार्जेस के बारे में बता देता हूँ। इवन जो हमारे जो परफॉर्मेंसेस वगैरह हमने जो रिपोर्ट्स वगैरह दिखाया है सारे, वो नेट ऑफ ऑल चार्जेस एंड एक्सपेंसेस के बाद ही आया है। 2.5% का हम मैनेजमेंट फी चार्ज करते हैं क्लाइंटों को एवरी ईयर, और ये 2.5 4 क्वार्टर में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 0.625 एवरी क्वार्टर में आपको चार्ज होता है, इफेक्टिवली 2.5% पर एनम। There is an exit load for the first 2 year. First year exit load 2% है, second year exit load 1% है। After 2 year there is no exit load। और जो भी हमारा बाइंग सेलिंग डिलीवरी का जो काम होता है, जो जिसमें उसके ऊपर 25 पैसे का ब्रोकरेज लगता है। वी आर नॉट हियर टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, पूरा इन्वेस्टमेंट वाला आइडिया है यहाँ पे। तो ब्रोकिंग इज नॉट एनी मटेरियल इनकम टू अस। इनफैक्ट ब्रोकिंग मुझे बाहर करनी पड़ती है। एज फार एज सेबी गाइडलाइंस आई कांट डू ट्रांजेक्शन more than 20% इन हाउस, 80% मेरा पूरा ट्रांजेक्शन आनंद राठी ग्रुप के बाहर ही होता है। तो हमारा जो ब्रेड एंड बटर इनकम जो है, दैट इज दैट मैनेजमेंट फी ऑफ 2.5%। एंड समथिंग सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस अगर आप देखोगे तो जितने भी मैनेज प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, इवन चाहे वो म्यूचुअल फंड ही क्यों ना हो, ओनली थिंग इन म्यूचुअल फंड में जितने भी चार्जेस है वो एनएवी में एडजस्ट हो जाते हैं, आपको डायरेक्टली नहीं पता चलता है, बट वो लोग एक आपको एक्सपेंस रेशियो दिखा देते हैं। सेम है यहाँ पे भी जो चार्जेस जो लगते हैं हमें वो सेपरेटली दिखाना पड़ता है, बिकॉज पीएमएस जो प्लेटफॉर्म है वो एज गुड एज डायरेक्ट इक्विटी जैसा प्लेटफॉर्म के हिसाब से वर्क करता है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन था एक मिस्टर संदीप का कि हाउ इज मेटल साइकिल कमिंग अप सिंस ह्यूज करेक्शन सीन, बेस्ट बाइंग टाइम। कैन यू रिपीट? एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ। मेटल्स के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, हाउ इज मेटल साइकिल कमिंग अप? Okay. Since a huge correction is seen, is it the Right, best time right. to So buy? definitely metal as a commodity is a globally determined, globally driven. तो आपको ग्लोबल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली रखनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं द एक्सपेक्टेशन इज दैट कि डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा स्लो डाउन होने वाला है, तो मेटल्स में भी आपको करेक्शंस दिखेगा। बट दिस इज फ्रॉम द मेटल प्राइसेस पर्सपेक्टिव। up to a certain extent, even if metal prices are remaining, it's a healthy sign। आज के तारीख में बात कर लेता हूँ। इवन इन इंडियन मार्केट जितने भी मेटल कंपनीज भी जो आज काम कर रही है,
एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज हमने देख लिया था 2008 से लेके 2020 तक में। काफी सारे कंपनीज कोलैप्स हो गई थी, काफी सारे कंपनी डेट ट्रैप के अंदर फंस गई थी, काफी सारे कंपनीज एनसीएलटी केस बन के बड़े बड़े कंपनी ने उन्हें टेक ओवर भी कर लिया है। और अभी जो कंपनीज बच गई है मार्केट के अंदर विच आर नाउ है वेरी वेल नोन कंपनीज हैं, उन्होंने काफी सारे मल्टी ईयर साइकिल्स देखे अप्स एंड डाउन के, दे हैव बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। उनके बुक्स जो डेट लेवल थे बुक्स के अंदर वो काफी हद तक कम हो चुके हैं। तो इवन इफ नाउ फर्दर अगर मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आती है, मेटल प्राइसेस अप्स एंड डाउन होते हैं, आई डोंट सी एनी रीजन स्पेसिफिकली फॉर एनी मेटल कंपनी टू फेस मेजर चैलेंज। हाँ, जो वन ऑफ इवेंट हुआ था, एकदम से जो स्पाइक्स आए थे मार्केट के अंदर, मेटल प्राइसेस जो भागे थे, जिसके कारण मेटल कंपनीज को एक अच्छा मोमेंटम रैली मिला था, वैसा मोमेंटम रैली हो सकता है ना मिले, लेकिन दे वुड बी स्टिल प्रीटी मच स्टेबल आफ्टर दिस करेक्शन। ये करेक्शन होने के बाद ये स्टेबिलिटी पे आ चुके हैं, अब नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से चलेंगे। हाँ, अगर ग्लोबली इकोनॉमिक ग्रोथ आर नॉट गोइंग स्ट्रॉन्ग, अगर देयर इज अ स्लो डाउन, अगर मेटल्स में और फर्दर डाउनसाइड आता है, तो अलोंग विद दैट डाउनसाइड इन द मेटल साइकिल हो सकता है ये मेटल कंपनीज में भी आपको हल्का सा करेक्शन दिख सकता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नॉर्मली हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि भाई मेटल एज अ कंपनी जो है, एज अ सेक्टर है, हम एज अ उसको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, इट्स प्योरली एन अपॉर्चुनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। जो ट्रेडर है, अगर उनको लगता है मेटल साइकिल की समझ है, तो डेफिनेटली दे कैन टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली कि अगर मेटल साइकिल यहाँ से अपटिक में दिख रहा है तो ही वो उसमें इन्वेस्ट करे। टाइमिंग आई वुड से अवॉइड मेटल, बिकॉज एक राउंड ऑफ अपसाइड हमने देख लिया है, ग्लोबल में थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो हो सकता है आपको ये कंसोलिडेटेड मोड में ही दिखेंगे जितनी भी मेटल कंपनीज है एट दिस पॉइंट। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, टाइमिंग जस्ट अवॉइड, वेट फॉर सम सॉलिड कंफर्मेशन कि अगर ग्लोबल मार्केट में आई कैन से रिकवरी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। इंडियन मार्केट इज डूइंग गुड, तो इंडिया में चैलेंज नहीं दिख रहा है। ग्लोबली में हो सकता है एक बार 1 और 2 इंटरेस्ट रेट हाइक फर्दर हो जाए, फेड के अनाउंसमेंट्स आ जाए, पता चल जाएगा कि वेदर एक्चुअली रिसेशन हो रहा है या इट इज जस्ट अ रिएक्शन टू द इन्फ्लेशनरी नंबर्स। बाकी रिसेशन जैसा कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है टाइम पे। Okay, thanks, Mayur ji. Any more questions? Please feel free to chat or you can unmute and ask. आप unmute खुद कर सकते हो, पूछ सकते हो, टाइप कर सकते हो. And just for your information, मैं just मनी स्प्रिंग से बात कर रहा हूँ कि like some people have पूछ कि हमारे को 50 लाख possible नहीं है, तो it's okay, we can understand. तो हम we have different products like म्यूचुअल फंड में हेल्प कर सकते हैं, इक्विटी एडवाइजरी में भी हेल्प कर सकते हैं, जिसमें सेबी की तरफ से मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, लिमिट है इक्विटी एडवाइजरी सर्विसेज के लिए। तो मैंने चैट बॉक्स में नंबर डाल दिए हैं, यू कैन कनेक्ट विद अस और यू कैन ईमेल अस, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे, and feel free to reach out to us. Any questions? Please unmute yourself. Now, do you see anything we have missed? Any questions? Just I think most questions have been answered here. Okay. Then I think if there are no questions, I would like to thank Mr. Mayur Shah ji. आपका आज holiday है, Saturday being off. Till आप हम सब लोगों के लिए आ गए हैं. It was a very nice and information session. क्योंकि बहुत बार डाउट्स रहते हैं कि कैसा, क्योंकि जितने सारे न्यूज चैनल देखो, न्यूज आर्टिकल देखो, हर जगह पे कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज रहते हैं, तो पीपल गेट कंफ्यूज। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा आपने इंफॉर्मेशन दिया, थैंक्स लॉट। अमित, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। आपने काफी एफर्ट्स ली है, बैक एंड फोर्थ, हमारे डेट्स चेंज हो चुके थे, लेकिन आपने पेशेंटली सबको रिस्पॉन्ड किया और ज्वाइन किया, थैंक यू। एंड थैंक्स पार्टिसिपेंट्स फॉर बीइंग एक्टिव, और आपने क्वेश्चंस पूछे, इट वाज थैंक यू। और कुछ भी आपको कुछ हेल्प चाहिए, एनीथिंग यू नीड हेल्प, feel free to contact us through like Facebook, LinkedIn, और now Facebook channel। और ये सेशन का रिकॉर्डिंग भी हम कल तक आपको YouTube पे दिखेगा, किसी ने मिस किया है या कोई रिपीट देखना चाहते हैं, आपको कुछ फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हो, तो हैप्पी टू डू दैट। थैंक्स once again from the team management।
And thank you everyone. Have a nice day and have a nice weekend too.